जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 506th episode of live analysis. Today we are going to discuss the trading strategy for tomorrow's session, which is the budget day, 1st of February 2022. So it will be very exciting next 24 hours because a lot of things are going to unfold. On Wednesday, we have the OPEC meeting, which will be very crucial for the energy markets. Then on Thursday, we have the Bank of England coming with their monetary policy. On Friday, we have the non farm payroll. And then again on next Monday or maybe on Tuesday, we have the RBI. So tomorrow is a very big event, which I feel will be a non-event. Okay, so let us discuss why I'm saying so and what can we expect in terms of the technicalities for next 24 hours and how we should position ourselves. So good evening, welcome. And before I proceed further, let me just update you guys that next training is scheduled on February 12th and 13th, which is 10 days or 11 days from now. So anybody who is interested, you can WhatsApp and you can join, you can register. Once you register, you will be added in our Telegram group for a period of almost 100 days. And friends, if you are new to our channel, you can subscribe, you can share, you can comment, you can like, dislike, feel at home. Okay, so let us start today's session. So right now S&P 500 trading 1% higher, Nasdaq is up by almost 2%. Global markets are basically positive, and why so? Because of the fall in the US dollar. So US dollar is down. US dollar is trying to stage a pullback from a breakout level. एंड इन द मीन टाइम फाइनली यूरो इज अप. यूरो जो है एक अच्छी एक स्ट्रेंथ के साथ, एक पहली बार काफ़ी दिनों के बाद यूरो में एक स्ट्रेंथ मैं देख रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है. एंड ब्रिटिश पाउंड इज ऑल्सो ट्रेडिंग हायर. सो ओवरऑल क्या इम्प्लीकेशन है इन सब चीज़ों का बाजार पे? कल की वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस की थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो उसको आप प्लीज़ देखिए, उसको जाके वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की है. S&P 500 is turning bullish. It is almost coming out of range of this last 5 to 6 session. We had a very huge drop in the S&P 500, almost 15 to 16% down on a very large volume, and we have approached some support level for the time being. So I believe S&P 500 will bounce a little bit more, maybe not more than 4720. This is the maximum that I think. And again, it will start to fall back, thereby making a larger head and shoulder pattern. So basically, I will stick to my old view that the global equity markets, they are under distribution, और ये हमें इस टाइप की बड़ी बड़ी swings, this year is all about big swings, big range and big waves. So ये चीजें बहुत ही शानदार तरीके से इस समय चल रही हैं. So S&P 500 maybe max to max it can go till 4720, then again there should be a drop like this, and finally it will capitulate on the lower side. Upside limited है. अगर ये पूरी तरीके से न्यू हाई भी जनरेट करता है, still it will be limited upside. कोई न्यू मेजर गेन्स मुझे नहीं लगता यूएस मार्केट में आने वाला है. आई थिंक इट हैज peaked out, or maybe one leg can come. I really doubt about that. तो मुझे लगता है कि for the short term I think some upside can come, but again anytime next leg of drop can happen in the US market. अगर US मार्केट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी मार्केट्स में भी इसका जो है इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा. ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट्स जो हैं बहुत ही सैचुरेटेड हो चुके हैं. जर्मन डैक्स, फ्रेंच एंड दी यूके फुटसी, ये सारी मार्केट्स में काफ़ी सॉलिड एक डिस्ट्रीब्यूशन पिछले कई महीनों से चल रहा है और वही चलता भी रहेगा. आज एक इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में बहुत ही सॉलिड एक कमबैक हो रहा है. 2.5% ऊपर है ये इंडेक्स, विच इज क्वाइट गुड, विच इज क्वाइट पॉजिटिवली सरप्राइजिंग, बिकॉज जनरली ये बहुत ही वीक ट्रेड कर रहा था पिछले कई हफ्तों से. एंड टुडे वी आर सीइंग सम गुड बाउंस कमिंग इनटू दिस इंडेक्स. एंड द रीजन इज वेरी क्लियर. रीजन इज द सॉफ्टनेस इन द यूएस डॉलर. बट हालांकि जो इसका जो कमबैक है वो काफी स्ट्रांग है. ओके, डॉलर इतना भी कोई वीक नहीं है, एंड दिस इज आई वुड से ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड. नाउ इसका ये मतलब है दोस्तों कि अब यूएस डॉलर बेसिकली मार्केट्स जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये
इस समय एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यूएस डॉलर फॉर द शॉर्ट टर्म हैज पीक्ड आउट, इट हैज मेट इट्स रेजिस्टेंस, एंड इन्हें ये लग रहा है कि यूएस डॉलर जो है ये कुछ ज्यादा ऊपर इस समय नहीं जाएगा. एट बेस्ट इट विल रिमेन in a sort of a range, and probably till the time it remains in a range, these markets, because they are very oversold, they can bounce back. मुझे ऐसा लगता है कि still there is a lot of room to go on the higher side. Yes, in the short term we can have some pullback which is very normal to happen, but I think US dollar जो है ये एक progressive uptrend में है, and I think it will continue for much larger targets as we proceed further in this year. So मुझे नहीं लगता है कि US dollar is going below the recent bottom that it has made in this month. I think US dollar इस month का जो bottom है इसे प्रोटेक्ट करेगा काफी दिनों तक, काफी हफ्तों के लिए. आज एक और चीज है कि आज 31 जनवरी है, विच इज द मंथ एंड फॉर दीज मार्केट. सो प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू रिपेयर देयर डैमेज्ड मंथली कैंडल्स. सो ये भी चीज हो सकती है कि ये जो है मंथली चार्ट को थोड़ा सा इसे इम्प्रूव किया जा रहा है बाय स्टेजिंग अ नाइस कमबैक रैली. सो आने वाला एक दो सेशन बहुत ही क्रिटिकल होगा, बिकॉज somebody is lying, either the US dollar is lying or these equity markets are lying. Okay, I believe the equity markets are lying because इनका अपसाइड सीमित है, whereas the US dollar has a lot of room to go on the higher side. So US dollar has no room to lie. I think the equity markets, they are lying as of now. Okay, so कुछ दिनों तक ये तेजी वगैरह जो है चलेगी, बट ये कभी भी यू टर्न में परिवर्तन इसमें आ सकता है. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कमोडिटीज मार्केट फॉर द टाइम बिंग. नाउ फ्रॉम अ फॉरेक्स परस्पेक्टिव, जैसा कि कल मैंने कहा था कि दोस्तों बजट का जो दिन है और बजट का जो नेक्स्ट डे है, दीज 2 days it will be highly volatile. So if you have never traded forex on the budget day, kindly avoid doing so. And if you want to trade, then keep very low position, because there will be random movements, number one. Second, there will be an increase in the range. तो अगर फॉरेक्स मार्केट में डेली रेंज इतना होता है, तो इन 2 दिनों में हो सकता है वो डबल से ट्रिपल हो. ओके, एंड देयर विल बी मोर ऑफ रोटेशंस. सो इसमें आप अननेसेसरी का स्लॉटर आउट हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि यू स्टे आउट. एंड प्रोवाइडेड इफ यू गेट सम एक्सट्रीम लेवल्स, जो कि हमने रेंज बताई है, यूएसडी आईएनआर, ब्रिटिश पाउंड, जेपीवाई एंड द यूरो आईएनआर, इन चारों पेयर्स पे जो रेंज मैंने बताई है, अगर रेंज के किसी एक्सट्रीम साइड में आता है, ओके, इन ड्यूरिंग दिस वॉलिटिलिटी, देन प्रॉब्ली दैट विल बी अ गुड टाइम टू ट्रेड. तो अगर एक्सट्रीम रीडिंग्स आ गई तो हम ट्रेड कर सकते हैं, वरना जस्ट सिट असाइड और जस्ट वॉच एंड हैव फन. ओके, लेट अस क्विकली टॉक अबाउट द कमोडिटीज मार्केट. आज वैसे सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि पिछले काफी सेशंस काफी बड़े बड़े हो चुके हैं, 1.5 2 घंटे के. सो आज का सेशन जो है शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए. इंडेक्स फ्रंट पे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज में जरूर लूंगा. Now in commodities, natural gas has hit again 375. So थोड़ा सा भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आएगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. सो एनीबडी होल्डिंग लॉन्ग ट्रेड्स इन नेचुरल गैस, आपको कल भी बताया था कि 375 दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन. सो सम पुल बैक is desirable, some pullback is definitely welcome. And I think अगर ये मुझे एक deeper retracement दे somewhere near 330 sort of level, 330 325, then I will be very interested in natural gas buying again. Because overall I'm targeting 440 level on the natural gas. मुझे लगता है कि एनजी यहाँ पे जाएगा, which is 440. तो काफी अभी भी रूम है अपसाइड में. एंड आई थिंक वी हैव मेड अ सॉलिड accumulation base over here. So we have this huge base structure at the bottom, and on the left hand side we had very steep correction. So on the right hand side also I'm expecting some very sharp up moves to come. So I'm bullish on natural gas. अगर मुझे नीचे मिला 330 325 के रेंज में, तो इसे हम यहाँ पे धीरे से बाय करना पसंद करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 440. ओके, सो ये व्यू होगा नेचुरल गैस पे. क्रूड ऑयल पे ध्यान देंगे, क्योंकि वेडनेसडे के दिन क्रूड ऑयल पे ओपेक की मीटिंग है. आई थिंक क्रूड ऑयल इज डूइंग नथिंग, जस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन है. एक और छलांग मारने की तैयारी में है बंदा. 6850 का टारगेट जो है मुझे हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 6200 के ऊपर. सो क्रूड में कल के दिन जब इक्विटी मार्केट्स में एक इवेंट रिस्क है, ऐसे समय में हमें ऐसे एसेट क्लास को ट्रेड करना चाहिए जहां पे उस इवेंट का कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है. ओके, दिस इज व्हाट आई टोल्ड इन द ग्रुप आल्सो टुडे, दैट फाइंड एन एसेट क्लास जहां पे
जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है इस इवेंट का। सो आई थिंक क्रूड, एनजी, कमोडिटीज में एक्सेप्ट गोल्ड, आपको गोल्ड में हो सकता है इम्पैक्ट, बट बाकी कमोडिटीज में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, सो वहाँ पे आप प्ले कीजिए। सो ओवरऑल दिस क्रूड ऑयल, आई थिंक आई एम स्टिल बुलिश जब तक ये 6200 का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अगर मुझे ये अगले सेशन में थोड़ा और नीचे मिले, विच आई थिंक इट विल कम डाउन, ओके, आई थिंक इट इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल करेक्शन, तो मुझे लग रहा है कि ये इस समय लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए बढ़िया है। और अगर ये थोड़ा और नीचे मिले नियर 6400 और 6300, तो पोजिशनल बाय ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस 62 के नीचे होगा, टारगेट होगा 6850, सो दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रेड, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पे क्रूड में मिल सकता है, इसे वॉच करेंगे। सपोज इन अदर केस इट स्टार्ट्स टू टेक सपोर्ट एट द प्रीवियस हाई, 6400 का प्रीवियस हाई है, यहाँ पे गैप है, there is a gap till I think 6370 or something, so maybe ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये फ्लैग बना के ब्रेकआउट करता है, same thing I'm expecting to happen over here, okay, so basically this is the view, every time it will correct for 4-5 days and break out, you see this pattern is very repetitive in crude oil, every time it will make some flag and break out, पहले भी यही करता था, okay, here also you can see the same structure, so just watch for this flag pattern, and you can buy at lower levels or you can buy the flag breakout, because ये crude oil में बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो ये रिसेंटली हम 4-5 महीनों में देख रहे हैं, ओके। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग 6850 टू बी हिट इन क्रूड ऑयल। कॉपर की बात करें तो अगेन डिक्लाइन हो चुका है, 760 से 730 का रेंज है, एंड नो मोर अपडेट्स ओवर देयर। गोल्ड में कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आई थिंक टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो इफ वी गेट अ गुड 47,200, अगर हमें 47,200 का लेवल गोल्ड में मिले यहाँ पे और यहाँ से रिवर्सल होना शुरू करे, देन आई थिंक आई विल बी बायर इन गोल्ड, एंड 46,800 का स्टॉप लॉस होगा, एंड स्ट्रेट अवे टारगेट हम रखेंगे 49,000 का। पोजिशनल ट्रेड होगा, हो सकता है 5 से 10 दिन लग जाए, बट आई थिंक दिस विल बी अ वेरी हेल्दी ट्रेड। 47,200 से 49,000 के लिए ये मैं प्ले करना पसंद करूंगा। आई वॉन्ट टू सी गोल्ड कमिंग डाउन, अगर नीचे में मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बेरिश ऑन गोल्ड, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन गोल्ड, I want the perfect price to trade gold, and for that I think 47,200 is a fantastic level, okay। याद रखिए 46,800, 46,700 ये जो बॉटम बना था, ये लास्ट आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप डायरेक्टली परचेस करते हैं तो ये आपका आखिरी स्टॉप लॉस होगा। सिल्वर पे अगर हम बात करें तो 61,000 के लेवल पे सिल्वर है, सिल्वर सपोर्ट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का दिन वेट करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू इन सिल्वर, ओके। लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि अगले 24 घंटे ये मेरे रडार पे रहने वाले हैं। आई वांट टू disassociate from the budget and play something which is not related to budget, so I think cryptocurrency is the very nice place। I think कल का ही व्यू इंटैक्ट होगा क्रिप्टो में, 2700-2800 इथेरियम पे मैं देख रहा हूँ, एंड बीटीसी में अगेन 38,500 ट्रेड हो रहा है, बट 40,000, 39,000 समवेयर, 39,500 एक्सेट्रा में देख रहा हूँ। नॉट वेरी बुलिश, but some more upside is likely to come, and then I'm expecting again a big drop to come in the BTC and Ethereum। BTC जब तक 40,700 वगैरह के नीचे है, अगेन इसमें एक बिग क्रैक इसमें आने वाला है। सो आई थिंक मे बी टुमारो इवनिंग और सम टाइम टुमारो और टुमारो नाइट क्रिप्टो में वापस से एक इंटरेस्टिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। फॉर दैट टाइम आई थिंक अप मूव शुड कम, इथेरियम और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट आई थिंक $100 to $200 इथेरियम में एक अप मूव होना चाहिए, बट उसके बाद बहुत मजा आएगा। सो आई थिंक वेरी नाइस, क्रिप्टो में अगले 2 दिन ट्रेड करना बहुत ही शानदार होंगे, ओके। लेट अस कम बैक टू द इक्विटी मार्केट, एंड वेरी क्विकली एक बार हम चेक कर लेते हैं ब्रॉडर मार्केट्स की सिचुएशन क्या है। सो ब्रॉडर मार्केट्स टुडे fared very well, CNX mid cap and small cap both are up by 1%, 1.5%, close to that। So overall what can happen or what can go wrong in tomorrow's session? See, I think मुझे नहीं लगता बजट में कुछ खास होने वाला है, मेरे ख्याल से बजट विल बी नॉन इवेंट, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से बजट विल बी नॉन इवेंट 99% प्रोबेबिलिटी के साथ, अनलेस समथिंग वेरी यूनिक और वेरी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स कम्स। मुझे नहीं लगता कि
बजट से इस मार्केट को कोई भी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ऑलरेडी ग्लोबल क्यूज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एंड ओवरऑल these equity markets, they have become very aligned to each other at this stage of time. Okay, in the short term, for couple of days, maybe if something good comes out of the budget, तो एक अच्छी अपमूव वगैरह तो देखने को मिलेगी ही। बट वैसे भी अगर बजट में कोई चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो भी मार्केट जो है एक डिप के बाद थोड़ा सा एक अपसाइड जो है मार्केट दिखाएगा। ओवरऑल आई थिंक बजट विल बी नॉन इवेंट, एंड वेरी सून इट विल बी ओवर ऑल्सो, एंड देन market will look towards RBI. Okay, I think market is least bothered about budget. आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स और सारे लोग जो है बहुत बड़े स्टैटिस्टिक एंड ऑल दोस थिंग्स आपको शो करेंगे। मेरे ख्याल से मार्केट इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट बजट। देयर विल बी वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली, ओके, बट आई थिंक मार्केट is not at all bothered about budget. Okay, and market is highly bothered about RBI. ठीक है, अगेन सबसे अलग बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबका फोकस है बजट, मार्केट का फोकस है बॉस आरबीआई। क्यों? क्यों? ओके, उसका रीजन देखो दो है। पहली बात कि मार्केट्स रीसेंट जो एक्टिविटी हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड हुआ है इस बार। ओके, इस बार सिंक्रोनाइज्ड हुआ है, नंबर वन। दूसरी बात, कोरोना सिंक्रोनाइज तरीके से पूरे दुनिया से अब रिसीड कर रहा है। सिंक्रोनाइजेशन पे फोकस करना, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि नाउ द वर्ल्ड इज वॉचिंग टुवर्ड्स रेट्स। ठीक है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग टुवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ, द वर्ल्ड इज वॉचिंग टुवर्ड्स फ्यूचर एक्सपेक्टेड और इम्प्लाइड इन्फ्लेशन। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट? मैक्रोस। ठीक है, मार्केट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर बजट। क्या कर लोगे बजट पे आप? ठीक है, समथिंग हियर एंड देयर, दैट्स ऑल। So that is why, unless something very drastic comes out of the budget, it is not going to impact anything. Yes, it will create volatility because it has to create a volatility. अगर बाहुबली अपना दम नहीं दिखाए तो बाहुबली किस बात का? करेक्ट। सो बजट से वॉलेटिलिटी होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्ट्रक्चर जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं वही होगा कि मार्केट जो है एक बेयर मार्केट वाले स्टेज में चलेगा। एट बेस्ट निफ्टी एक डब्ल्यू शेप का एक बॉटम बना लेगा अगर कुछ बहुत पैनिक आया। Again, it will bounce back. Now, after this bounce back, we will come to know whether it is a channel, and it will collapse later on, or it will stage a W shape to hit 19,600. Okay, ओवरऑल स्ट्रक्चर वही है जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही है, ग्लोबल मार्केट्स बाउंस करेंगे, अगेन दे विल ड्रॉप, एंड दे आर इन अ कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंडिया में सेक्टर रोटेशन आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा। ठीक है, पीएसयू बैंक पे मैंने लॉन्ग रहने के लिए कहा था बजट के दिन तक, और आज का सितारा भी पीएसयू बैंक है, आज भी 2.5% के ऊपर है। कैनरा बैंक, एसबीआई, ऑल दीज गाइज, करेक्ट। सो हाउ कम वी आर गेटिंग इट सो राइट? हाउ कम इट इज सो प्रिडिक्टेबल? बिकॉज इट इज सो प्रिडिक्टेबल। इतना कॉमन प्रिडिक्शन इसमें चल रहा है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। ओके, और इतना कॉमन प्रिडिक्शन तभी चलता है ना जब मार्केट एक बेयर मार्केट की तैयारी में हो। ठीक है, ओके, सो लेट अस सी निफ्टी में कल क्या सिग्निफिकेंट कुछ लेवल्स हमें मिल सकते हैं, या क्या हो सकता है। सी, आज का जो दिन था, आई थिंक 17,400 एक मेजर रेजिस्टेंस था, 17,425 टू बी प्रिसाइज वाज अ मेजर लेवल। टुडे देयर वाज अ big gap up opening. Yesterday we discussed why this daily candle, the inverse pin bar, okay, 17,200, why this level is so critical. कल के सेशन में हमने इसे डिस्कस किया था, एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड दैट एनी अप मूव अबाउट दिस विल ट्रिगर एटलीस्ट 17,400, यहाँ तक का ये बहुत ही हाई चांस है। ओके, सो दिस वाज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कि आज अगर गैप अप होगा तो ऑब्वियसली इट विल कम एंड टेस्ट दिस। अब इसके बाद probably it can start to crack or it can start to break out, but nothing happened in the market. Okay, so today the premiums were also very high, and with so high premium, I think there will be big put selling for the short term. That doesn't mean market will be very bullish. Again, I am saying it will be just to eat the your volatility, the high premiums. Okay, now tomorrow at best what can happen? We can get a dip like this, a W shaped dip. Okay, maybe that can flush
through the previous bottom, but again there should be some rise. Again, I'm saying some rise, okay, not a complete huge up move, etc. But yes, this structure is very very likely to happen, this structure going forward. Now if we do not come down, if we go up directly, then the risk will again increase in this market, and eventually I think you are going to see this bigger drop. अगर हम नीचे जाके ऊपर आते हैं तो मार्केट बहुत ही स्टेबल हो जाएगा. अगेन आई एम सेइंग market will become very nice, very stable, very healthy. Even if it remains a range bound, it will move with satisfaction. और अगर मार्केट नीचे आए बिना भाग गया ऊपर, तो अगेन there will be a bigger correction in times to come. तो कल कौन से लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए? सी, नंबर वन, आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम बिग लेवल टू कम टू ट्रेड द इंडेक्स. एक तो ये चीज, क्योंकि अगर आप किसी भी रैंडम लेवल पे काम करोगे तो स्टॉप लॉस उड़ने का पूरा चांस होगा. सो ऐसा कौन सा लेवल हो सकता है कल? सी, फॉर दैट वी शुड रिफर टू द वीकली चार्ट. सो द लास्ट वीक लेवल 17,600, आई थिंक दैट इज अ level that we should pay attention over here, because it is a critical level. As you can see, 17,600 के आसपास, that was the first bottom, okay, where we bounced, made a lower high and cracked below that, okay. Then again there was a bounce, and again this level stopped the market, again made a new low. We broke out, again came for a retest, could not bounce this time, and again it got sold. So I think 17,600 is a level, 600, 650 sort of a level, that I think market is considering very very critical, above which market is figuring out a 600 points up move, and below that market is going a lot deeper. So ये एंगल हमें देखना है कि इसके ऊपर मार्केट ने दो रैलीज स्टेज की हैं, दोनों ही लगभग 500-600 पॉइंट की रही हैं, हालांकि जो ड्रॉप है वो ज्यादा बड़ा है, okay. So I think if tomorrow you get 17,600 sort of a level, or 17,600 to 800 sort of a level, that will offer a good opportunity to take a short trade. But again, it will be budget, so please trade at your risk, please use your stop loss. And I think this is a significant resistance from where we can get some decline. And if we open a gap down, अगर 17,200 के नीचे की ओपनिंग होती है, तो बॉस आई थिंक मार्केट विल गो and make almost a double bottom or a flush through this level, okay. But it will be again just a volatility driven market, nothing conclusive will come out of it, and I think market will stabilize, and then probably it will wait for RBI. So कल के लिए देखिए, कोई मॉब लेवल वगैरह मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कोई सेंस नहीं है. I can only suggest the context, and I can tell you that this sweet level range, I think that is something where I will be watching very very keenly on the Nifty. 17,600, 17,800, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक weakness, you must try a short trade with a stop loss. Of course you must try a short trade, because if this works, you can get a nasty fall of almost 900 points to test the 16,700 level. If that is taken out, then gone, okay. सो आई थिंक ये सेफ ट्रेड है, यहाँ पे एक सेफ बेट है, तो इसे मैं आजमाना चाहूंगा. दूसरी बात कि सपोज अगर कल गैप डाउन होता है, विच लुक्स वेरी अनलाइकली, वेरी वेरी अनलाइकली, if there is a gap down below 17,200, then I think outright short try करना चाहिए, and पहले लेग में बाजार जो है नीचे जाएगा, and probably then it will start to cover. सो आई थिंक इससे ज़्यादा हम कुछ खास अनुमान नहीं लगा सकते. मंथली कैंडल आज की आप देख सकते हैं क्लोज हो चुका है. वी गॉट अ ब्रेकआउट फेलियर ऑन द मंथली, सो आई वाज कंसिडरिंग दिस एज अ सॉर्ट ऑफ अ बुलिश channel, a bull flag sort of a structure on the monthly time frame. We got a very nice breakout, came very close to hitting a new high, but again got sold off. So this in one sense is bearish, provided we start to trade below 16,800 levels, which is nothing but your January bottom. यानी समझिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि कॉन्टेक्स्ट है बेरिश, बट 16,800 के नीचे पूरी तरीके से मार्केट बेयर्स के कंट्रोल में आ जाएगा, पूरी तरीके से. जब तक 16,800 है, एक चांस अभी भी बुल के पास है कि वो इसका फायदा उठाए, इस प्रीवियस कैंडल का फायदा उठाए. एंड इन नेक्स्ट मंथली कैंडल,
it can again reclaim the lost ground. And if it does that, then I think market will make a new high by March. 19,600 तक ये मार्केट जा सकता है। तो 16,800 इस लेवल को आप नोट कर सकते हैं। इसके नीचे हम डेली पे क्लोज कर रहे हैं या वीकली पे क्लोज कर रहे हैं, इट मींस वेरी वेरी बेरिश एंड मार्केट हैज नो other level but to go and test 15,600, 15,400 in coming months. So this is a sort of a fulcrum, this is a sort of a monthly mob level कि 16,800 के ऊपर हम जो है तेजी में है। पहला टारगेट आप मान सकते हैं 18,400, दूसरा टारगेट 19,600 और इसके नीचे एक ही टारगेट 15,400, 15,500 and all these levels, maybe much deeper also but for the time being, ठीक है। सो ये एक व्यू है, ये एक कुछ सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, एंड आई स्टिल थिंक इट विल बी नॉन इवेंट with huge range. Now, let us talk about Bank Nifty. Why? Because the Bank Nifty holds the actual clues. So today again it took resistance at the 38,200. There was a initially there was a good drop, fill up the gap, again came back. So I think good day for Bank Nifty, a decent volatility and overall within the expected range. So I think Bank Nifty ठीक था. Now see what it has done. It has made a inside bar, a bearish inside bar. ठीक है, a bearish inside bar. ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये जो है ना दो तरीके से रिजॉल्व होगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। आई थिंक बैंक निफ्टी में इवन इफ अ ह्यूज रैली कम्स पोस्ट बजट, बैंक निफ्टी में देर इज सम प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक बैंक निफ्टी इन नियर फ्यूचर, ओके, even if it goes till 40,000 etc., I think bank nifty will break this bottom sometime in next 45-day cycle. It can happen immediately, it can happen later on, but I think this bottom is not secured. So this bottom must be broken down once. Okay, यही चीज मैंने यहाँ भी कही थी एक बार कि this bottom doesn't look secured. It was taking lot of support, it bounced also, there was a big breakout from this short term range, but eventually it came back and pierced through this swing bottom and then made a final bottom. So this is what I think, that bank nifty is still sort of afraid and it is not convincing enough to go higher, but it can go higher. Okay, what I mean to say is कि ये फाइनल बॉटम नहीं है, ये कितना भी ऊपर जाए एक बार इसे ये ब्रेक करेगा। तो अब बैंक निफ्टी में कल कैसे अप्रोच करें, हम सीधा उस पे आते हैं। सी बैंक निफ्टी tomorrow, if there is a gap up opening, if there is a gap up opening above say 38,150, 100 etc., then I think bank nifty is straight away going up. Okay, it will be a small breakout sort of thing and bank nifty should go and test the 38,800 level minimum, and probably बजट है तो थोड़ा अगर जोश में रहेगा तो 39,200, these two levels can come. Okay, now the recent structure is looking sort of a wedge, and we already have a double top in place over here. So any sort of weakness coming from this wedge structure will directly mean that you will come back straight away to 35,400. ठीक है, तो ये चीज बड़ा ही केयरफुल यहाँ पे रहना है कि कल 38,100, 150 एक्सेट्रा के ऊपर एक स्पाइक आएगा जहां पे ऊपर के दो टारगेट्स वगैरह कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट बॉस ट्रबल ध्यान में रखना, अगर कोई ट्रबल हुआ यहाँ से तो शॉर्ट करने में शर्माना नहीं, एंड विदाउट स्टॉप लॉस तो काम ही नहीं करना है। यू कैन keep the recent highs as a stop loss, or maybe whatever new high is created over here as a stop loss and try your short trade। फर्स्ट टारगेट में रखना चाहूंगा 50 DMA को, which is near 37,200, so on the short side 37,200, which is this, okay, and that holds the trend line also। so अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके बाद 37,200 के नीचे निश्चित तौर पे 35,300, 35,400, all these levels are bound to come। okay, so it will be a nasty blow, but it will be healthy also, it will be good for bank nifty। देखिए कोई भी चार्ट जब तक स्ट्रक्चर बॉटम या टॉप नहीं बनाता है वो तड़पते रहता है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई होती है। तो यू कैन ड्रैग इट, यू कैन पुल इट, यू कैन पुश इट हियर एंड देयर, बट अनलेस it completes the task that it wanted to do, it will not move properly in a direction।
and once that auction is completed, then it will take only few days to complete the big job, big task. Okay, that's how the मार्केट साइकोलॉजी वर्क्स, नॉट ट्रेडर साइकोलॉजी. आपकी एक साइकोलॉजी होती है, मार्केट की भी एक साइकोलॉजी होती है. तो जब तक मार्केट जो है अपने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को पूरा नहीं करेगा, तब तक मार्केट जो है एक unsatisfied zone में रहता है. Okay, so this is what I feel, that this 39,000 barrier is a major barrier. Above this there is no issue till 40,000, but this is the major barrier. And immediately 38,200 के ऊपर bullish है 39 के लिए. And but overall यहाँ से अगर ट्रिप करता है तो सीधा ये आके गिरेगा. पहला सपोर्ट है 37,200 and then straight away 35,400. ठीक है, so that's it. So that's all on Bank Nifty for tomorrow's session. Okay, let us take some stock queries. I think stocks में बहुत ज़्यादा queries हैं लोगों के पास. So let us take stock queries. I will wind up this. Okay, ONGC. ONGC first counter है for today. So ONGC has come near the new high. So sort of profit booking इसमें आनी चाहिए. ठीक है, so trail your this thing or yeah. See, ONGC ONGC में एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको 165 पे ट्रेल कीजिए. हालांकि बजट में हो सकता है ट्रेलिंग उखड़ जाए, बट अगर 165 वगैरह आप ट्रेल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ONGC में एक मोमेंटम के साथ जो है अपसाइड आ सकता है. ओके, मोमेंटम के साथ अपसाइड बन सकता है, बट अगेन ट्रेलिंग को रिस्पेक्ट करना दोस्त, क्योंकि ट्रेलिंग हिट होता है तो यू मस्ट एग्जिट और एल्स अगेन इट विल फॉल बैक. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं. TCS. So today, IT and PSU banks were up, so they managed the index, especially these IT stocks. So TCS has given inside bar breakout, came very at a good level. I think this qualifies for a sort of a reversal, I would say. But still, we will get good opportunities to take a fresh trade. So on TCS, I can say two things. Number one, suppose tomorrow or day after tomorrow in some panic or volatility, if you get TCS at 3550, then grab it. ठीक है, यहाँ पे कैश में थोड़ा सा बाय करके रखिए. एंड I think after this, again, it should go up and complete that 4100 cycle. Now, suppose you have already bought it, then you can still follow this advice. You can average something over here, keep below this as a stop loss, and again, 4100 should be eventual target. Okay, so in both the cases, I think that should be target. If you see it up and you are buying, then I'm sorry to say, but that will be a crime. ठीक है, बाय नीचे करना है, ऊपर ऊपर में नहीं करना है. ऊपर पहले जाता है जाने दो, क्योंकि आएगा सेकेंडरी टेस्ट करने के लिए, उस टाइम पे आप बाय कर सकते हो. ठीक है, बट डोंट बाय हियर, बिकॉज देन योर रिस्क इज दिस मच, रिवॉर्ड इज दिस मच, एंड द मोमेंट you buy, it will come down. So this is a pathetic trade. Okay, Britannia, I think, just a second, let me okay, कुछ hackers दिख रहे हैं मुझे, let me just hack them. Okay, okay. Alchem Labs, Tata Motors. Okay, let us check Tata Motors. टाटा मोटर्स देखिए 620 का अपना टारगेट इंटैक्ट है बॉस. सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर है, एंड आई थिंक इट इज गुड इनफ. लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि अगर ये नीचे आता है तो इसे बाय किया जा सकता है. अगर आपने पहले कभी एक्यूमुलेट नहीं किया तो यू कैन बाय इन दिस वन. सो आई थिंक टाटा मोटर्स हैज डन गुड जॉब. इफ यू आर ट्रेडिंग इन FNO एक्सेट्रा, देन you should trail to 460. If you have invested in cash, then very good. ठीक है. SBI रोज एक्सप्लेन करता हूँ, 570 का टारगेट है SBI. अब PSU बैंक को ऑफलोड करने का समय आ चुका है. कल का भी दिन है आपके पास, बट नाउ आई थिंक दैट सेफ ट्रेड इज ओवर, सो बुक योर प्रॉफिट्स. सिमिलरली कैनरा बैंक को देखते हैं 204 से. इसको मैंने लैप अप करने के लिए एडवाइस दिया था. 204 से
70 हमने बात की थी, आई थिंक इट हैज गॉन टिल 255, सो दिस इज द टारगेट ओवर हियर विच वाज द लास्ट स्विंग हाई. So try to book out near 260 to 70 for the short term. Okay. Radico Khaitan. रेडिको खैतान इस समय जो है दोस्त बहुत ही 50-50 वाले सिचुएशन में है. ओके. सो यहाँ पे मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेके रखे हैं तो आपको 900 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. ओके. एंड अगर आपको फ्रेश एंट्री देखना है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो दिन इसमें फ्रेश एंट्री मिलेगी. वॉट आई डोंट लाइक अबाउट दिस स्टॉक इज the thing that the short term moving averages, they are broken. ठीक है. And 200 EMA is just sitting over here. Okay. So price wise good support exists at 1000 level, but overall I don't like all these structures. Okay. So that's the point. अगर आप लॉन्ग हैं तो आप इसको स्टॉप लॉस रखिए. अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना मेरे ख्याल से बेटर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेरी है naukri.com. सो इन्फो एज में आज बहुत अच्छी बढ़त आई है. अगर पुराना माल अटका है तो इसको एग्जिट करिए, फ्रेश ट्रेड हम बाद में लेंगे. सो इन्फो एज 5300 5350 एक्सेट्रा अगर आता है तो आंख बंद करके पुराना माल जो है डंप करिए. ओके. बिकॉज all these stocks, they have broken their 200 DMA after a long time. And in a bear market we get the best bull trend, and in a bull market we get the best bear trend. So यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है ऑफलोड करने का. इसे ऑफलोड करिए और फिर बाद में इसको समय देंगे. लेट अस सी इफ इट इज स्टिल अ बुल, then in future you will get lot of opportunities. Okay. But suppose if it has become bearish, then पाताल लोग इज द लिमिट, एंड यू विल रियली रिग्रेट लेटर ऑन कि इसे क्यों नहीं निकाला. ओके. सो समटाइम्स अपना ही सिक्का खोटा इसमें निकल जाता है शेयर मार्केट में. सो ये हमारा एक अच्छा काउंटर था. इसे हमने शुरू भी किया था बाय करना, बट देन इट ब्रोक डाउन. सो इसे एग्जिट कर दिया गया था. 4800 आखिरी लेवल था इसमें. वर्लपूल. This market is very smart. It will convince you that you should keep on holding positions and I will bounce back. Okay. This market is very smart. It is trying to play with your psychology. ये वो शख्स है जो धोखा दे के आपको कन्विंस करेगा कि धोखा नहीं हुआ है. ओके. सी वर्लफुल डबल बॉटम स्ट्रक्चर है दोस्त. टेक्निकल पुल बैक है. 2100 तक जा सकता है. इसे यहाँ पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं 2100, मे बी 2000 to 2100. दैट्स अ गुड स्लैब टू एग्जिट एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रेश पोजीशन. नेक्स्ट क्वेरी है विप्रो पे. सो विप्रो yesterday I think we discussed this stock inside bar or something was there. So Wipro again कल का ही आंसर होगा that 588 it can come. No fresh trade from my side. Okay. I will wait very patiently to give fresh trade because recently सारे स्टॉक्स ने स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन किए हैं. पीएसयू बैंक पे अपना सिंगल व्यू था एंड दैट हैज हैपेंड. कुछ स्टॉक्स में अभी भी सिंगल व्यू है, बढ़िया व्यू है, जैसे हिंडाल्को है, पीडीलाइट है. सो देर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे अभी भी बहुत ही क्लियर कट बुलिश ट्रेड्स हैं. ओके. This stock KRBL, it's a total dead counter those. The very pathetic head and shoulder structure है. For the time being 220 etc can offer some support, but just exit this stock. On any bounce you should exit. See, it is getting ready for a dump. Okay. So अगर बाजार में एक तेजी की लहर आ जाती है तो आप इस स्टॉक को फ्यूचर में निकल जाइए, क्योंकि इसमें आज नहीं तो कल पूरी डंपिंग होने वाली है. ठीक है. So look at this. It is going to meet corona bottom in near future. ऊपर में 300 मैक्सिमम. Alchem Labs. See, Alchem Labs इस समय एक अच्छा बाउंस कर रहा है. I think 3750 should come. Okay, that's the limit for right now. Okay, I think till earnings 3750 आ जाएगा, वहां पे निकल जाना चाहिए. नेक्स्ट है ब्रिटानिया. यस, दिस स्टॉक वाज पेंडिंग. सो ब्रिटानिया में वेरी सिंपल strategy has been working since last 2 years that buy near 3300 and book near 3800. अगर आप इसका 2 साल का चार्ट देखेंगे तो मैं 2 साल से यही चीज इसमें एडवाइस भी कर रहा हूँ इनफैक्ट. सो
once in every 2-3 months we get this opportunity to buy at support zone. अभी भी थोड़ा सा और नीचे आया होता तो इसमें मिल जाता. Now suppose अगर आपने बाई किया है, then I think you can continue to hold and follow this same range. 3300 buy, 3800 sell. That's it. इसमें और कुछ करना ही नहीं है. वेरी गुड क्वेश्चन. किसी ने पूछा है कि सुपीरियर बेयर 101, ये तो मेरा भाई है सर. ओपन इंटरेस्ट इज नेसेसरी फॉर, मैंने तो आज तक नहीं देखा. LNT, गुड क्वेरी. LNT, Larsen and Toubro. See, Larsen and Toubro, a very good stock, very good query also. इस स्टॉक में अगेन सपोज किसी पैनिक वगैरह में आपको ये स्टॉक नीचे मिलता है 1750 के आसपास, तो इसे डेफिनेटली बाय कर लेना चाहिए. ठीक है. सो दैट्स ऑल आई कैन से फॉर द टाइम बिंग. टुमारो वी कैन गेट अ फ्रेश व्यू. If you get in panic 1750, just grab it in cash, not in FNO, obviously. ठीक है. Overall, still one more upside can come. So this is why I'm not in a rush to buy these stocks, because see, these stocks somehow, जैसे LNT last cycle में I was very bullish. अगर किसी को याद होगा तो मैंने इसमें बार बार कहा था कि 2100 इसमें आना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट 2100 से बेरिश एनगल्फिंग बना के गिर चुका है. Now, I don't like this sort of a reversal from a level that was my target. Okay. So, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग हो जाती है. दो चीज मैं देखना चाहता हूँ. या तो ये एक ऐसे लेवल पे आए जहां पे मुझे रिस्क लेने में ज्यादा लॉस ना हो, एंड इफ इट वर्क्स आई कैन गेट अ ह्यूज प्रॉफिट. ओके, नंबर वन. नंबर टू, लेट इट स्टार्ट द इंजन. लेटर ऑन हम किसी एक स्टेशन पे चढ़ जाएंगे इसके अंदर, एंड वी विल गेट द प्रॉफिट. बट डायरेक्टली यहाँ से कोई निष्कर्ष निकाल लेना, ये चीज मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टेज में, जबकि स्टॉक ने एक हमारा मेजर लेवल अचीव कर लिया है. ठीक है. बिकॉज हियर इट्स लाइक 50-50. इट कैन कम स्ट्रेट अवे डाउन ऑल्सो, इट कैन गो अप ऑल्सो. ओके. सो दैट इज वाई मैं आगे के दो सिनेरियोज के लिए प्लान करता हूँ, इमीडिएटली कुछ नहीं. So suppose if you are holding it in FNO, etc., then no option but to keep this 1830 as a stop loss. And overall, I would prefer deeper levels to buy, or let the rally begins and then on any pullback, buy for new high. इस तरीके से. So I think I have explained this. Next query है महिंद्रा एंड महिंद्रा. दोस्तों लाइक का बटन दब नहीं रहा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. एमएनएम जो है इस समय बुलिश है. सो एमएनएम में कोई भी गिरावट आती है 820 तक, तो आई थिंक वी शुड बाय. ओके. एंड नेक्स्ट टारगेट जो है 970 होगा. सो एमएनएम इज बुलिश. इट्स अ गुड काउंटर, बट यस यू मस्ट बाय एट लोअर लेवल्स. बाय नियर 820, सॉर्ट ऑफ 820, 835 इस स्लैब में. पहले भी आई थिंक मैं स्टॉक को डिस्कस कर चुका हूँ कि इस स्लैब में से बाय कीजिए. लास्ट टाइम, यस अब मुझे याद आ गया, लास्ट टाइम यहाँ पे इसे रिकमेंड किया था, एंड आई थिंक 60 to 70 पॉइंट्स एक अप मूव आया था, अगेन केम बैक, एंड नाउ अगेन इट इज जंपिंग अप. सो बहुत ही शानदार जोन है ये 820 के रेंज वाला. ये जो स्लैब है ये बहुत ही बढ़िया स्लैब है. अर्निंग्स भी आ रही हैं. देखिए, अगर आपको कुछ पैनिक वैनिक में मिला तो यहाँ पे आप कैश में बाय कर सकते हैं. एंड अपसाइड जो है पूरा ओपन है, 1000 रुपीज तक upside is open in this stock. And if I have to tell you the long term chart, then long term chart definitely 1000 rupees will come once again. So I think good counter. Apple India Limited, okay, next counter है. So stock has taken support from a very expected level, very precise level है इस stock में. And see, one thing that I don't like about this stock is the volume pump and the dump. ठीक है. तो generally जब भी मुझे ये दिखता है, okay, I am not very keen on that stock. As of now, अगर आप इसमें long है तो इस bottom का stop loss रखिए. I think 1170 should be your stop loss, and then let us see where it goes. अगर ऊपर जाता है तो profit book कर लीजिए. ठीक है. I don't like this structure, pump and dump, that too on a very large volume. Average volume इसकी इतनी है.
लुक एट दिस। तो किसने यहाँ पे इतना बड़ा माल खरीदा? क्लोजिंग प्राइस उसकी यहाँ पे थी, और इसके ऊपर इट हैज नॉट सस्टेन, इट इज ट्रेडिंग बिलो दैट लेवल. So what happened here? Okay, what happened at this level, which is 1360? That is the actual scene of crime. इनफैक्ट ये लेवल जब टूटा था, यहाँ पे 3 दिन का सपोर्ट लिया इसने 1360 पे, और एक ही दिन में फ्रॉम 1360 टू 1160, एक ही दिन में. सो एक इसमें गेम साजिश हो चुकी है. सो ध्यान दें इसमें. नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज. डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज मारुति हो चुका है. मारुति पे एक जो क्वेरी आ रही है, मारुति पे अब कोई फ्रेश ट्रेड अभी नहीं है. हाँ, कोई बहुत अच्छी गिरावट आएगी तो वापस बाय करेंगे. मारुति में कोई टेंशन नहीं है. मारुति लास्ट 1-2 महीने से बहुत सही स्विंग्स लग रहे हैं मारुति में, कोई दिक्कत नहीं है. और आगे भी मारुति में मिलेंगे, हमें बड़े बड़े शॉट्स मिलेंगे, हजार हजार पॉइंट के. ठीक है, so no issue over there. Dixon Technology is finally trying to stabilize. So as of now, no comment. I would not suggest anything. We have hit 200 DMA. We have made a big wide range candle, lot of volume. So generally ये एक bottom के आसपास की निशानी होती है. ठीक है, but the my approach is different. I don't start immediately buying. Okay, if the stock is guilty, then let it repair itself, let it heal, and then in later stage, when it is ready to take on the world, at that stage I would like to bet on this stock. ठीक है, देखो, जख्मी जानवर, जख्मी इंसान ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो भी उठेगा, पर उसे समय तो दो. ठीक है, और जो जख्मी हालत में जो पाउंस और बाउंस करता है ना, वो सिर्फ उसका जोश होता है, होश नहीं होता. ठीक है, तो वो वापस गिरता है, और फिर उसके बाद अगर उसमें सही में जोश है तो वो वापस उठेगा. तो दीज आर सम ऑफ द साइकोलॉजिकल रीडिंग्स दैट आई लुक फॉर द टाइमिंग. सपोज अगर आपने लॉन्ग किया है तो इन शॉर्ट 4000 का स्टॉप लॉस रखिए. रिलायंस, ओके, रिलायंस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेरी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, गुजरात एल्कलीज इसके बाद मिलूंगा. सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आई थिंक अगेन 2300 के आसपास, 2350 और सम लेवल अहेड ऑलरेडी गिवन. तो यहाँ पे ऑलरेडी रिलायंस में बाइंग हो चुकी है. रिलायंस में कोई भी डिप आती है, रिलायंस को बाई किया जाए. रिलायंस में कोई दिक्कत नहीं है. रिलायंस इज स्लोली 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 मेकिंग अ राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर. रिलायंस पे अभी भी 3000 का मेरा टारगेट इंटैक्ट है. even if market goes under bear market, I think Reliance will hold on. Reliance में definitely एक एक upside pending है for sure. Even if market goes under distribution, Reliance बार बार इसको पुश करेगा, हेल्प करेगा बेसिकली. सो इसीलिए मैं रिलायंस पे, मैंने यहाँ पे डीप लेवल्स पे ही बाइंग करने को कहा है, सो दैट देर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस कॉल. ठीक है, सो आई थिंक रिलायंस इज फाइन. 2350 के आसपास या 2300 के नजदीक बाइंग करना ही था. ओके, लेट मी जस्ट अपडेट द चार्ट. ओके, नेक्स्ट गुजरात एल्कलीज. सो गुजरात एल्कली इस समय पूरी तरीके से न्यूट्रल है. कोई व्यू नहीं है, कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता है. इट इज़ लाइक टोटल 50-50. कोई भी इसमें क्यूज वगैरह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं. हालांकि ज़्यादातर बेरिश ही मुझे लग रहा है. सो नथिंग कैन बी सेट. ओके, यू कैन प्रॉब्ली कीप अ स्टॉप लॉस 620 इफ यू आर लॉन्ग. इसमें अच्छी चीज क्या होगी इस स्टॉक के लिए भी, क्या बेहतर होगा पता है, कि एक बार, या तो एक बार ऊपर चला जाए. अच्छा, वन मोर थिंग, सपोज ये डायरेक्टली इफ इट गोज अप ना, देन जस्ट बुक आउट बॉस, जस्ट बुक आउट. ओके, इसमें गेम ऑलरेडी हो चुका है. ह्यूज वॉल्यूम, पम्प डम. ठीक है, तो इसमें जो है निकल जाओ, यही मेरे ख्याल से बेहतर होगा. प्राज इंडस्ट्रीज इज द नेक्स्ट क्वेरी. प्राज इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं. बजाज फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स, डीएलएफ. ओके, डीएलएफ, चलो किसी ने तो पूछा. ओके, सो प्राज इंडस्ट्रीज इज ब्रेकिंग हायर. आई थिंक दिस क्वालिफाइज फॉर अ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इन द स्टॉक. रिलेटिव आउट परफॉर्मर का टैग इसे मिलेगा. सो टू थिंग्स. नंबर वन,
if this is a genuine breakout. If this is genuine breakout, then there's a lot of room to go on the higher side. At least till 500, 600, etc. should come in the medium term. If it is a false move, then after 478 it should start to drop. आप इसमें क्या कर सकते हो? नंबर वन, ट्राई टू कीप 360 लेवल इन योर माइंड। 360 आपका ये एक स्टॉप लॉस आप लेके चलिए। जब तक 360 सेफ है, इसमें कोई भी गिरावट आती है आप उसे बाय कर सकते हैं। आई थिंक स्टॉक इज गुड एंड आई थिंक इट विल रीच 500 600 sort of levels in future. So try to buy very low एंड 360 एक रेफरेंस लेवल लेके चलिए। इसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है, देन वन मस्ट एग्जिट। ओके, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रक्चर है where 360 will be a new floor for the stock, and 470 500 520 those will be the future ceiling, future resistance. सो ध्यान रखिए 360 लेवल को गिरावट पे बाय करें, ऊपर में मत बाय करें, गिरावट पे बाय करें। मे बी 380 वगैरह से आप बाय करना शुरू कर सकते हो। 380 से 360 आप एवरेज आउट कर सकते हो, और मे बी 340 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। 20 रुपया नीचे, 20-30 रुपया नीचे, एंड दैट्स इट। एंड देन वेट फॉर 100 to 150 रुपीज प्रॉफिट। गुड स्टॉक एज ऑफ नाउ, गुड स्टॉक, वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट है आर वी एन एल, रेल विकास निगम। सी ये लॉन्ग टर्म काउंटर है, तो इसमें आप बाय एंड फॉरगेट करिए फिलहाल। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। आरवीएनएल पहले से ही मैं यही व्यू है मेरा कि बाय एंड फॉरगेट है, सो जस्ट बाय एंड फॉरगेट फॉर फ्यू इयर्स, डोंट वॉच इट। बजाज फाइनेंस एज ऑफ नाउ आई थिंक इज ट्राइंग टू होल्ड। एंड बजाज फाइनेंस, अगर दोस्तों अगर हमें बुलिश व्यू खेलना है, तो एक चीज का ध्यान देना होगा कि 6500 मस्ट बी प्रोटेक्टेड। सो बजाज फाइनेंस, अगर आपको पैनिक वगैरह में 6500 का लेवल मिलता है, 65 63 समवेयर जस्ट अंडर दिस और जस्ट अराउंड दिस, ओके, प्रीवियस बॉटम था 6492, सो आई वांट टू सी समथिंग लाइक दिस। if you get it here, okay, between 62 to 65, I think it is worth taking a shot. Okay, so you can lap up in some quantities in panic over here, and then keep a stop loss below 6200, and I think the trade should work fine at least till 7400, so this can give you good profits. Now suppose अगर ये डायरेक्टली भाग जाता है 7400, then nothing can be done. अगर आप इसमें लॉन्ग है तो कृपया इस बॉटम का स्टॉप लॉस लगाइए। 7400 के आसपास जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। एंड बेस्ट लेवल इज दिस, द ट्रिपल बॉटम ओवर हियर, ठीक है, दैट विल बी अ सुपीरियर लेवल टू बाय। This stock is interesting stock. Why? Because it has made a triple top as of now. Generally, ट्रिपल टॉप बनाने के बाद अगर बाजार अपने बॉटम को ब्रेक नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें कुछ रोटेशन करेंगे एंड इन फ्यूचर इट विल ब्रेक आउट। ठीक है, तो वो जो एक इम्प्लाइड मैसेज है वो अपने पास अभी आ चुका है। So let us play for within this bigger range. Let us play for these levels, and later on we will see when to play for that eventual breakout. Okay, so I think we have completed 1 hour of live streaming very quickly. Couple of more stocks and then we'll wind up. DLF is always a favorite for the budget theme. So DLF में पिछले सारे swings अपने correct हुई हैं. Recently again these levels, if you remember, 425 430 was very heavy resistance, and again we got sold off. Now I think DLF is under problem. DLF में देखिए समस्या बढ़ चुकी है इस वक्त. Okay, what is the samasya? The samasya is that I don't see DLF sustaining even in best cases above 460. So I really doubt DLF will go above 460. So having said that, if it comes, in best case, if it comes over here, मैं अब DLF में short का ही try करूँगा at these higher levels such as 440 and 450 slab यहाँ पे, ठीक है. For the short term, I think 345 340 is a very good support. Okay, so if you see any panic, still I don't think इसे buy करना चाहिए, but maybe you can buy with 340
एंड बिलो एज अ स्टॉप लॉस फॉर सम गेन्स। ओवरऑल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बुलिश साइड में, ये मैं की सपोर्ट लेवल्स दे रहा हूँ जहां से कुछ टेक्निकल बाउंस बैक आ सकती है। मेरा इंटरेस्ट ये होगा 450 460 के स्लैब में इसे शॉर्ट करने का। अगर यहाँ से इसमें एक फेलियर वगैरह मिलता है आने वाले कुछ हफ्तों में, तो मैं इसे शॉर्ट साइड में प्ले करना पसंद करूंगा। ओके, दिस स्टॉक is shorter's favorite stock since 10 years, so I think it will not disappoint the shorters for even next 10 years. अगर आपको रियल एस्टेट प्ले करना है तो लेट मी सी दैट स्टॉक, क्या नाम था उसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टॉक, आई जस्ट फॉरगॉट। बहुत चार ट्रेड दे चुका हूँ अभी तक, चार के चारों सही हुए हैं स्टॉक पे। हमारे झुंझुन वाला सब, डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प, अब याद आ गया। सी, अडानी पोर्ट्स हैज फाइनली कम एट अ बाइंग लेवल एट 200 ई में मूविंग एवरेज। सो इसमें एक ट्रेड में देता हूँ, पैनिक की ट्रेड है, पैनिक कराएगा और डिसिप्लिन के साथ खेल सकते हो तो ही खेलना। 640 का लेवल नोट करके रख लेना, 640 पैनिक में बाय। ओके, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 580, दैट्स इट। ठीक है, एसएल हिट हुआ एग्जिट कर लेंगे, एसएल सेफ है तो रखेंगे, एंड वी विल वॉच वेयर दिस स्टॉक गोज टिल यूपी इलेक्शन। ठीक है, सो एक ही लेवल 640 580 एसएल के साथ, अगेन एसएल के साथ immediately good support has been taken, and if it goes up you can book profit for the short term. 800 is the booking level right now, and 692 or 690 is the support for now. Okay, if it comes at 690, don't buy only at 640. 690 is a good support for those who have already bought, that I'm saying. ठीक है, 690, 800, 640, 580। अनुपम फाइनेंस, अनुपम फाइनेंस, व्हाट इज दिस स्टॉक, अनुपम फाइनेंस। ओके, मुझे इसमें कोई टिकर नहीं आ रहा है सिंबल में, आप सिंबल जरा बताइए। ओबेरॉय रियलिटी, ओके, डेल्टा कॉर्प एक बार चेक करना है। इसकी ओबेरॉय रियलिटी तो बेटर है थोड़ा सा, चार्ट इसका बेटर ऑफ है, बट कोई बहुत बड़ा अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है। और एकदम बीच में, अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे होता ना 770, तो एक ट्रेड इसमें बनता, बट राइट नाउ इट्स एग्जैक्टली एट सेंटर, सो नो ट्रेड कैन बी टेकन इन फ्यूचर। याद रखिए कि 765 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो इफ यू गेट दिस स्टॉक समवेयर नियर 790 और 780, यू कैन बाय विद 750 एज अ स्टॉप लॉस, बट अगेन अपसाइड मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। Maybe just a new high can come, or maybe 1050 maximum. Delta Corp, this is the stock that I wanted to check. Delta Corp में almost चार स्विंग्स हो चुकी हैं, 1 2 3, ओके 3 हो चुकी हैं, पहले वाला एक मिला लें तो 4। सो डेल्टा कॉर्प पे ध्यान देना। डेल्टा कॉर्प अगर आपको नीचे पैनिक में मिले 240 वगैरह, तो बिंदास उठा लेना 220 के स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज आई थिंक ये रेंज इंटैक्ट होगा और अगले राउंड में ये रेंज अपसाइड ब्रेक होगा, बशर्ते निफ्टी वगैरह पूरी तरीके से टैंक ना करे। आई बिलीव any down move can be bought, and eventually this range will break out. Even if it doesn't break, you have a good trade from 240 to 300 310, not bad. ठीक है, मारुति में अभी कोई ट्रेड नहीं है भैया, मारुति में निकल जाओ। ठीक है, मारुति में बुक करिए, मारुति में तो ऑलरेडी बहुत लंबी चाल हो चुकी है, 7200 से आ गए अपन 9000 पे। 8300 पहला टारगेट था, 9000 दूसरा टारगेट था, दोनों डन डना डन। अब ब्रेक लेंगे मारुति से। ओके, डू नॉट गेट फोमो, मारुति में ब्रेक लेंगे और जब आराम से प्ले करेंगे अगले राउंड में, whenever we get a good dip. Infosys is the next query. See, Infosys again index management sort of a counter है इस समय, अच्छा बॉटम यहाँ पे तो लग रहा है, बट एज ऑफ नाउ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे मैं समय देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा हैवी डिक्लाइन था, सो आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ अ डिक्लाइन। ओके, सो अगर आप इसमें लॉन्ग है तो एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि 1650 का स्टॉप लॉस रखिए, दैट्स ऑल वी कैन से।
Okay, this is reminding me of ITC, that how ITC cracked and then it did nothing for so many months. So हालांकि ये चलो ITC नहीं होगा because of being IT, बट स्टिल अच्छा अपसाइड इस समय 1800 तक आ सकता है। ठीक है, 1800 टेक्निकल पुल बैक 1800 से ब्रेक डाउन हुआ था, सो 1800 तक आ सकता है। थोड़े दिनों बाद इस स्टॉक में हो सकता है हमें इंटरेस्ट आए। सेंचुरी टेक्सटाइल, दो और स्टॉक लेंगे दोस्तों और फिर फाइंड अप करेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल इस समय तो कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। टाइटन एक इंटरेस्टिंग क्वेरी है, टाइटन कंपनी। सी टाइटन बजट से इम्पैक्ट करेगा, ऑब्वियसली गोल्ड ड्यूटी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह इम्पैक्ट करेगा। ये स्टॉक अभी मेरे ख्याल से बेस्ट लेफ्ट अवॉइड है। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन एक दिन दे चुका हूँ कि ये स्टॉक अगर हमें यहाँ मिले 2120 पे तो हमें इसे बाय करना चाहिए। 2120 पे मिले तो हमें बाय करना चाहिए और इस 100 पॉइंट के स्लैब में हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। 2120 से लेके 2040 इस स्लैब में बाय करना चाहिए, इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के। एंड देन इन नेक्स्ट राउंड हमें ये स्टॉक कम से कम 2520 यहाँ तक का स्विंग हमें दे सकता है, 2520 यहाँ तक का। दैट्स इट। तो इस स्टॉक में एक गेम प्लान ऑलरेडी इंटैक्ट है, मैं उसी को फॉलो करना चाहूँगा। अगर मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बट प्लान को चेंज नहीं करना है। बीएचईएल में भी कुछ खास नहीं है एज ऑफ नाउ, कुछ खास नहीं है। एक दो दिन बाद सब में खास चीज़ें बन जाएंगी। अभी तो मुझे ये कुछ खास नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ये ऐसा लग रहा है कि ये अगर 55 ब्रेक किया तो इट विल गो 44। सो प्लीज कीप योर स्टॉप लॉस। ओके, 54 के नीचे गॉन। अनुपम फिनसर्व, लेट मी सी अगेन। अनुपम फिनसर्व लिमिटेड आ चुका है, बीएससी काउंटर है, सो बीएससी में निकल जाओ, कोई व्यू कुछ नहीं। एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, which is HDFC, just HDFC, okay, so HDFC, अनुपम फिनसर्व निकल जाइए बॉस। Okay, so HDFC, see HDFC I think has entered a good slab, but I think it is little early, okay, to take any call. Why? Because since COVID bottom it has like broken the pitchfork. So इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि ये लेवल तो ठीक मालूम होता है, बट मैं इसे समय देना चाहूँगा। फॉर द टाइमिंग इट कैन मूव फ्रॉम से 2450, 2450 से लेके ये इस स्लैब में मूव कर सकता है 2780। ठीक है, इसमें मैं समय देना चाहूँगा। समय का क्या मतलब होता है दोस्तों कि देखो, प्राइस कंपेयर करो, यहाँ पे सबका लगभग सेम प्राइस है, बट इसकी उड़ान भरने की समय यहाँ पे आएगी। ठीक है, भाव सेम है, टाइम अलग है। ओके, सो इसमें भी वही चीज मैं कह रहा हूँ कि प्राइस घूम फिर के यही मिलेगा, मुझे पता है, बट आई थिंक राइट नाउ इट कैन डू क्रेजी थिंग्स एंड अ प्रॉपर मूव विल कम सम टाइम later on. Okay, so for the timing you can play this range with this volatility just like it did here. Okay, and then sometime in future you will see a clean trend, so I would like to wait for that time. Till then you can play this choppy range. अभी कोटक बैंक में भी यही चीज हुआ, 1750 से लेके 1950 मैंने कहा था, 1950 के आसपास आया भी था, बट यू नो अगेन पीपल आर जस्ट इन्फैचुएटेड विद बुल रन, सो बुक भी नहीं किया एंड देन अगेन इट हैज फॉलन बैक। लेवल्स के हिसाब से काम करो इस मार्केट में। टाटा मोटर्स बुलिश है, वोल्टास आखिरी क्वेरी होगी, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। वोल्टास इस समय अगर आपको मिल जाए 1100 से लेके यहाँ पे 200 डीएमए के आसपास, तो इसे आप बाय कर सकते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। दैट्स इट, और इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहूँगा। अभी भी इसने डबल टॉप नहीं बनाया है, सो दैट गिव्स द स्टॉक अ रूम टू मूव ऑन द हायर साइड। आई थिंक ये ठीक है,
it is repeating this structure. So I think it is okay. Okay, I think this will be repeated, so I think it is okay. Good sort of stock है, ठीक है. सो दैट्स ऑल. सो दैट्स ऑल दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करेंगे. अगेन 1 घंटा 10 मिनट का लाइव स्ट्रीम हो चुका है. बहुत लोगों की क्वेरीज मैं नहीं ले पाया, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेक एज मेनी क्वेरीज एज पॉसिबल. अगर आपको अपनी क्वेरीज को हाईलाइट कराना है, अगर वो सिग्निफिकेंट क्वेरी है, अर्जेंट है आपके लिए, तो आप सुपर चैट कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा. आप कमेंट कर दीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह दोस्तों कर दीजिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो किसी भी समय बंद हो जाएंगे. एंड ओनली 2 or 3, मैक्सिमम 2, आई एम नॉट श्योर अबाउट थर्ड, ओनली 2 trainings will be conducted in the next 30 days cycle. And after that, I think there will be no training for many months. So avail this opportunity. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन. आराम से काम करना, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है. और एज आई सेड, आई थिंक इट विल बी नॉन इवेंट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गुड नाइट. जय माता दी.